Hindi. The most participant here is physical exist with us. It's a no problem if you deliver the Okay. presentation, the workshop in Hindi. It's no problem. And Okay. So few I we have use. online. The online participant will also know the Hindi language as well. Thank you. Okay. So I will try to like speak both language. And if you have any problem, you can ask anytime. Okay. So today Sure. you have given me topic that development of tools for data collection. So there are, if you have done research or if you are planning to do research, we all of you know that for research we need some tools or some instruments for data collection, because data collection is a part of the research. Whether you do the action research or any type of research, qualitative or quantitative, you need some tools, some questionnaire, some instrument for collection of data, maybe the primary data or secondary data. So today we will discuss together that what are the different tools for data collection, for the quantitative research, for the qualitative research, for the action research, or any type of research. And I will discuss little bit extra for achievement test, because to know about achievement test is very necessary for all teachers, for all research scholars, because this gives us idea how you prepare the questionnaire for research or for class test or for any achievement of the students. So all of you know that research tools is like very much important for research. And when you prepare the proposal, that is, you know that we prepare the research proposal before starting any research. In that time you have to mention the research tool, whether you are taking the research tool from from other, means there are two types of research tool, whether you are taking the ready-made tools. Ready-made tools means already standardized tools by someone. Suppose I have done research, I have used or I have prepared one tool. So if I have prepared and I have done research with that tool, that is a standardized tool, that is available in internet, in the shop in the market, and you can buy the tools, or you can download from the internet, or you can ask from the researcher and you can use the tool. So that is one type of tool. Second is that you have to prepare as a researcher. So today we will discuss as a researcher how you prepare the tool. That is very important. If you do any type of research, that is very important. You know about the different types of tools, because in teaching career you have to do so many types of research. Suppose during PhD or during MPhil you have done one type of research, so you don't restrict to such type of research only in your lifetime. In your teaching career you have to do so many types of research, and you have to idea that what are the different types of research and in which area we can go for research. So as I have told, that one is a standardized tool that is already published by someone. You can just like you can buy or you can download from the internet, and you can use that tools from your study. The second one is researcher developed. Suppose you are doing the research, you have to develop that tools. For that, you have to take the little bit extra effort. And believe me, if you are developing any type of research tool for your study, you will be mastered in research, because developing tools is itself a mini dissertation, or you learn so many things while you develop the tools. So if you have developed any tools, we will discuss later on that what types of tools you have developed and what you learned during this process. Because in my PhD, I have developed my tools. My tools, I have developed the attitude towards science. And in that process, already I know that what is the main concept of the research. And after developing the research tool, the other work that will be very easy in doing research. So this is very important, because when you develop the research tool, you have to take care of the reliability of the tool, validity of the tool, and objectivity of the tool. Reliability, out of that is the degree of consistency.
between two measurements of the same attribute, and validity, that what you want to measure. So that you have to take care. And objectivity is that the test should be free from biasness, that it should be objective, not be subjective. So this is the basic idea you have to develop any type of tools. So before starting the achievement test, I just want to discuss with you all that what type of test you can develop and you can use in your research. So as all of you know that achievement test, as the name suggests, achievement means जब आप किसी का achievement जज करना चाहते हैं, वो आप क्लासरूम में कर सकते हैं, वो आप किसी रिसर्च स्कॉलर का कर सकते हैं, और आप कहीं पे कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, सपोज सोशल में, सोसाइटी में, किसी स्टूडेंट पे, किसी लाइक सोशल मेंबर पे, किसी इंस्टीट्यूशन पे, आप किसी का भी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, किसी का भी अचीवमेंट देखना चाहते हैं, यू कैन ट्राई द अचीवमेंट टेस्ट. आप इसका रेडीमेड टूल भी दे सकते हैं, ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड टूल है वो भी दे सकते हैं, आप डेवलप भी कर सकते हैं. The second, you can study on the area aptitude test. Aptitude, all of you know that it specifies the particular skill, whether you have the teaching aptitude, whether you have the driving attitude, whether you have aptitude, whether you have the some sewing aptitude, means your skills. So if you want to study on the aptitude of anyone, you can use this tool. Then the third is the creativity. All of you know that if you want to judge the creativity in your research, you want to do this topic, you can to take this. And all type of test, सभी जो मैं बोल रही हूँ वो सभी में आप स्टैंडर्डाइज्ड टूल भी दे सकते हैं जो अवेलेबल है. इसके एक को टॉप, जैसे सपोज पर्सनैलिटी है, उस पर सैकड़ों रिसर्च हो चुके हैं, वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर में रिसर्च हो चुके हैं. तो आप चाहे तो उनका टूल दे सकते हैं या फिर आप अपना डेवलप कर सकते हैं. लेकिन मैं प्रेफर हमेशा मैं अपने रिसर्च स्कॉलर को बोलती हूँ कि सपोज 2-3 टूल ले रहे हो तुम पीएचडी में, तो एटलीस्ट यू ट्राई टू डेवलप वन टूल. एक इंस्ट्रूमेंट तुम डेवलप करो, क्योंकि जब एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करोगे तो तुम समझोगे कि हाउ टू डेवलप द टूल, एंड दैट इज वेरी यूजफुल इन योर करियर. क्योंकि आपको, आप अगर पीएचडी कर रहे हैं तो आपको पीएचडी करने के बाद टीचिंग लाइन में जाना है, आपको भी स्कॉलर को गाइड करना है, तो बहुत जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आप किसी का टूल यूज कर लेते हैं वो बहुत ही इजी है, किसी ने टूल बनाया, दैट इज यू कैन टेक द टूल एंड यू डू योर रिसर्च, दैट इज वेरी इजी. बट आप जब डेवलप करते हैं कोई टूल अपने रिसर्च के लिए या अपने स्कॉलर के रिसर्च के लिए, अगर आप उसको हेल्प करते हैं, you learn so many things during this development of tools. तो at least अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आप के लिए भी मेरा ये सजेशन है, अगर आप फैकल्टी है तो एक सजेशन है कि अगर आपने अब तक अगर रिसर्च टूल डेवलप नहीं किया है तो आप कीजिए. जैसे इंडिया में है, एक आगरा में है साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, वहां पे आप अपने टूल को पब्लिश करा सकते हैं, और आपका टूल जो ऑल वर्ल्ड में कहीं भी वो कोई भी यूज कर सकता है. आप अगर देखेंगे इंटरनेट पे भी बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जो डेवलप किए हैं और जो अभी वहां पे इंटरनेट पे अपलोड किए हैं या फिर कहीं किसी यूनिवर्सिटी से अपलोड किया गया है. तो ऐसे पर्सनालिटी में है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक अगर आप कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक से कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर टूल डेवलप करें. यू कैन डेवलप एनी टाइप ऑफ टूल विच इज रिलेटेड टू योर रिसर्च. सो नेक्स्ट इज एटीट्यूड स्किल. आप एटीट्यूड पे अगर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो كمان شيء ده غزة بينا مختلف مساعدك. Yeah, any problem in understanding? No, no. Oh, You may it's okay. continue. Okay, it's okay. So आप अगर एटीट्यूड स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आप उस पे भी कर सकते हैं. आप यू नो द एटीट्यूड, आप डिकर्ट स्किल कर सकते हैं, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 7 पॉइंट कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा स्ट्रांगली एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसे ये 5 पॉइंट है. 3 पॉइंट कर सकते हैं, 7 पॉइंट कर सकते हैं. तो आप डेवलप के टाइम में आप समझेंगे कि कैसे इसको किया जाता है, कैसे स्कोरिंग होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है. रेटिंग स्किल, अगर आप वैसा टाइप का स्टडी कर रहे हैं जहाँ रेटिंग स्किल की जरूरत है तो आप वो भी रेटिंग स्किल भी बना सकते हैं. दिस इज अ लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गिव हियर, और उसमें आप रेट देंगे
जो कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब जैसे स्टूडेंट का लीडरशिप स्किल है तो आपको जज करना है कि किसका लीडरशिप स्किल कम है, ज्यादा है या एवरेज है, या फिर किसी का स्पीकिंग स्किल है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। तो अगर आपको ये जज करना है तो यू कैन गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेटिंग स्किल। ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्वेशन में चेक लिस्ट बनाते हैं, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज में सब जो हम लोग चेक लिस्ट बनाते हैं वो भी कर सकते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन में बहुत सारा है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन। आप जब स्टडी करेंगे तो आपका जो सैंपल है, सपोज हम किसी विलेज में जाके हमें स्टडी करना है उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो आप एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब वहीं पे आप रह के उनमें पार्टिसिपेंट करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये भी एक रिसर्चर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टडी है। आप चाहे तो आप एज ए रिसर्चर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आप कभी मेल थ्रू मेल या फिर कोई रिपोर्ट हो गवर्नमेंट का या फिर कोई स्टेटमेंट हो, इससे भी कर सकते हैं। आप जानते हैं अगर रिसर्च आपने किया है तो आपको पता है कि बहुत ऐसा कुछ रिसर्च का लिमिटेशन नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर टूल ही देना है या पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर मेथड से कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड दे सकते हैं, कोई भी टूल दे सकते हैं, डिपेंड है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप कौन सा टूल यूज करना चाहते हैं। सपोज आप अगर सर्वे कर रहे हैं, अगर आप डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी मेथड यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च में, तो आप सर्वे मेथड कर सकते हैं। सर्वे में भी बहुत सारा सर्वे है, क्वेश्चनियर आपको बनाना है, जो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चनियर बनाते हैं, जो एग्जैक्ट क्वेश्चनियर हो और जो वैलिड हो, जिसकी ऑब्जेक्टिविटी हो, जिसकी रिलायबिलिटी हो। तो आप क्वेश्चनियर आप बना के उसको डायरेक्ट आप इंटरव्यू में कर सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं, या फिर आप जैसे क्वेश्चनियर भी दो टाइप का जैसे होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर कर सकते हैं। ये मैं जस्ट आपको एक रिफ्रेश कर रही हूँ कि आप अपनी रिसर्च में ये सब काम कर सकते हैं। क्वेश्चनियर भी आप ओपन एंड बना सकते हैं, क्लोज एंड बना सकते हैं। आपको पता है कि क्लोज एंड में जैसे आप उसका आंसर दे देंगे यस नो, या फिर एमसीक्यू बनाते हैं तो 4 या 5 स्टेटमेंट दे देंगे, चॉइस दे देंगे डिस्ट्रैक्टर के साथ। ओपन एंड बनाते हैं तो उसका भी शॉर्ट टाइप है, लॉन्ग टाइप है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टडी कर रहे हैं। और क्वेश्चन को आप इंडिविजुअल भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ग्रुप एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। सपोज आपको क्लास 6 के स्टूडेंट का अपने एरिया में स्टडी करना है, उसके इंटेलिजेंस पे, तो आप वहां पे जाके क्लासरूम में आप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट का भी कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन योर रिसर्च। ऑनलाइन भी है वेब सर्वे। अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम में हमारे मेल में कितने सारे आते थे, रिसर्चर भेजते थे कि आप इसको फीडअप करके भेजिए। तो आप अभी उसके बाद ये भी कंटिन्यू है ऑनलाइन और वेब सर्वे, जो बहुत इजी है। आप गूगल फॉर्म में इसको करके आप भेज सकते हैं। सपोज आपको 500 डाटा चाहिए, आप 2000 मेल में भेज सकते हैं, आपको 500 से ज्यादा आ जाएंगे, देन यू गो फॉर योर स्टडी। इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चनर आप दो है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, वैसे इंटरव्यू में भी है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड है कि आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर किया और अपने टाइम का परमिशन लिया, फिर जाके आपने इंटरव्यू लिया। बहुत सारे स्टडी में होता है कि आप यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू मेथड। अनस्ट्रक्चर्ड में है कि आप ऐसे दैट यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल इन आस्किंग द क्वेश्चन, और ऐसा कुछ आपका नहीं है कि इस टाइम में भी इस टाइम में ही जाना है, तो आप वैसे भी दे सकते हैं। सपोज आप कोई लीडर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जाना है, या किसी ऐसे ही आप सोसाइटी में जाके आपको किसी लाइक डिवोर्स पे आपको स्टडी करना है, या किसी और ऐसे टॉपिक पे स्टडी करना है, तो आप जाके अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले सकते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू भी है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू भी है। तो आप डिपेंड करता है कि आपका स्टडी कैसा है। टेलीफोनिक इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी बहुत सारे टाइप है। केस स्टडी भी एक टाइप का रिसर्च है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर केस स्टडी पे आप रिसर्च कर रहे हैं देन यू आल्सो गो फॉर द क्वेश्चनियर। आप कोई भी, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी मेथड यूज करे, कोई भी आप टेक्निक यूज करे, यू हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चनियर। आपको क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। विदाउट प्रिपेयरिंग क्वेश्चन आप कोई भी मेथड से डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक है, जैसे आपको पता है कि सोशल रिलेशनशिप वी हैव टू मेजर फ्रॉम द सोशियोग्राम, तो आप इसके लिए भी आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा।
आपने देखा है कि जितने सारे डॉक्यूमेंट एनालिसिस है उसमें भी हम यूज करते हैं, जैसे पब्लिक रिकॉर्ड है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, फिजिकल मटेरियल्स है, तो इसको भी आपको एक क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। तो सो आई समराइज इन जस्ट वन सेंटेंस that what topic you select, what method you select, what design you select for your research, you have to prepare the questionnaire. Or the other option is you have to use the tools what is developed by others. So if you are doing research, my humble suggestion that you have to prepare, at least prepare one tool so that you know the procedure. So today we will discuss in detail the development of achievement test. As you know that achievement test means if you are a teacher, you also that this is two type of test. One is teacher made test, one is standardized test. I will go in next slide. So achievement test, you know that you want to, if you want to test the achievement of the students, like in any subject, suppose English, maths, like Urdu or history, geography, whatever teacher is teaching, if they want to test the achievement of the students in particular subject, you can go for the achievement test. Or if you prepare any question in your research on the achievement, you can go for the achievement test. It's here you can know the different type of skills, different type of cognitive, affective, psychomotor domain you can judge through the achievement test. So it is a necessity for every teacher, every educator, every researcher to know how to develop the achievement test. Teacher made test, you know that in a regular, in a university level or school level, generally teachers are preparing the questions in midterm test or in class test, and they will give the students, then the students will give the answer, and you can assess, you can judge the like achievement of the students. That is very simple. No standardization is done during that test. One is the standardized test. So both is the achievement test. In both test you want to judge the achievement of the students. लेकिन एक होता है कि हम जैसे टीचर हैं, हमको अभी मिड टर्म लेना है स्टूडेंट का, तो हमने शॉर्ट टर्म और ये शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप या एमसीक्यू हमने बना लिया और स्टूडेंट का टेस्ट ले लिया। फिर हमने जाना कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में वीक है, तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट उसके बाद यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। बट जो सेकंड है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसमें क्या है कि हम टेस्ट तो बनाते हैं, लेकिन वो टेस्ट रॉ मटेरियल जो है हम टेस्ट का वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, उस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो जो हमने टेस्ट बनाया है, सपोज हमने क्वेश्चन बनाया है, तो उसको हम कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। मैंने सर को इरफान सर को दो पीडीएफ फाइल भेजा है, वर्ड फाइल है, नॉट पीडीएफ, वर्ड फाइल है। एक में है डाटा सीट जो हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे, और एक मैंने क्वेश्चनियर भेजा है, दैट इज द 50 क्वेश्चन उसमें है। वो पहले हमने 100 बनाया था क्वेश्चन, उसको आफ्टर आइटम एनालिसिस उसको 50 रखा है। तो आप अगर किसी रिसर्च के लिए क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो आप देखे होंगे, आपने अगर रिसर्च किया है तो आपने बहुत सारे क्वेश्चनियर देखे होंगे जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे या फिर फॉर्म, बुक फॉर्म में। तो उसमें क्वेश्चनियर दिया रहता है, जैसे 20 या 30 या 35, 40। तो वो ऐसे नहीं डायरेक्ट कोई ऐसे क्वेश्चन बना के आप उसको नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी तब रिलायबिलिटी, वैलिडिटी नहीं होगी। आपको पहले सपोज 100 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा या 150 बनाना पड़ेगा। Then you go for the item analysis, and after item analysis you can decide that how many question is appropriate for the study, क्योंकि सभी क्वेश्चन की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी नहीं होती है। ये हम बताएंगे कि कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डेवलप करते हैं, you should take care of that कि उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स वो यूजफुल होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए आप उसको बना रहे हैं उसका यूजफुल होना चाहिए। फिर आपको पता है कि रिलायबिलिटी अगर 0.7 से ज्यादा है तभी वो रिलायबल है, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं है। क्वेश्चन शुड बी वेरी सिंपल इन लैंग्वेज, उसका एम्बिग्विटी नहीं रहना चाहिए लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि हम पूछना कुछ और चाह रहे हैं और जो जिनको हम दे रहे हैं वो कुछ और समझ रहे हैं।
Language very simple. If you write in English, Hindi, Urdu, in any language, language को आप simple बनाएंगे, और जो आप पूछना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन में अपने स्टडी के लिए, वो क्लियर होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि हम किस लेवल के लिए ये क्वेश्चन बना रहे हैं। आप प्राइमरी लेवल के लिए बना रहे हैं या सेकेंडरी, टर्सरी और द हायर एजुकेशन। अगर आपको पता है कि किस चीज के लिए बना रहे हैं, तो आप दैट शुड बी वेरी क्लियर फॉर यू टू प्रिपेयर द क्वेश्चन। तो हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, प्लानिंग द टेस्ट। आपको पता है हम टीचर हैं, कुछ करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, आप लेसन प्लान बनाते हैं जब क्लास में जाते हैं। तो आप क्वेश्चनर भी बनाएंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। देन आप प्लानिंग होने के बाद आप क्वेश्चन प्रिपेयरिंग, आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। फिर आप उसको ट्राई आउट, जैसे क्वेश्चन बन गया तो आपको पता नहीं है ये क्वेश्चन कैसे रिलायबल है कि वैलिड है कि क्या है, तो उसके लिए आपको ट्राई आउट करना पड़ेगा, जिसको पायलट स्टडी भी बोलते हैं। तो आप पायलट स्टडी करेंगे, उसके बाद आप उसको इवैल्यूएट करेंगे। देन यू एबल टू नो कि हाँ, मेरा जो क्वेश्चनियर है, मैंने जो बनाया है वो सही है, तब आप उसको रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये डाटा सेट मैंने आपके साथ लोग गुजरेंगे तो ये डाटा सेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, शेयर भी किया है। तो आप अगर अचीवमेंट, ये मैंने बहुत छोटे लेवल में किया है क्योंकि ये अब तो रशीद साहब हाजिर हों, वो क्या है ये जब आपने किया था ना, आपको पास जा रहा था, उसको क्या है कि आगे से मैं बात करते हैं। ये मैं सीखने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल वाला लिया है, लेकिन आप कोई भी बड़ा से बड़ा रिसर्च करना चाहते हैं, 1000 सैंपल पे करना चाहते हैं, 3-4 टूल डेवलप करना चाहते हैं, तो सेम प्रोसीजर यू कैन अप्लाई फॉर एनी क्वेश्चनियर। तो आपको पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर कि आप किसके लिए ये क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, तो आप किस हिस्ट्री के लिए बना रहे हैं, इंग्लिश के लिए बना रहे हैं। अगर आप कॉलेज टीचर हैं तो आप किस सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं। अगर आप रिसर्चर हैं तो आप क्या, आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या स्टडी है, क्या टॉपिक है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर टॉपिक, अबाउट योर सब्जेक्ट एंड क्लास मीन्स लेवल ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या लेवल है। फिर जैसे मैंने लिया है कि आप हमने स्कूल लेवल में अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि सीखने के लिए आपको इजी होगा कि क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं। तो हमने एक सब्जेक्ट, सपोज हमने साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, क्लास लिया 6, और आपको क्लास 6 के साइंस बुक का सपोज 10 चैप्टर है उसमें। तो आपको जब जैसे आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है और समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज टेकन एट द एंड ऑफ द एग्जाम। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप ले सकते हैं मिड टर्म, जिसको हम बोलते हैं, बीच में ले सकते हैं, या 6 मंथ पे ले सकते हैं। तो आप, ये डिपेंड करता है कि अगर आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ले रहे हैं तो यू कैन टेक द 4 और 5 चैप्टर। इफ यू कैन टेक द समेटिव इवैल्यूएशन मींस आप एंड ऑफ द क्लास के दे रहे हैं, तो मे बी आपको 10 चैप्टर हो सकता है, 12 चैप्टर हो सकता है। तो यू कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन, देयर इज नो लिमिट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द प्रिपेयरिंग 10 क्वेश्चन। अगर आपको सीखना है तो आप 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, 20 कीजिए, 30 कीजिए, 100 कीजिए। ये डिपेंड करता है आपको कि कितना करना है। एमसीक्यू हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एमसीक्यू से हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आप डेवलप करेंगे आइटम को, क्वेश्चन को। देन व्हेन यू प्रिपेयर द क्वेश्चन, यू गो फॉर द ट्राई आउट। उसके बाद आपको स्कोरिंग करना है। स्कोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्कोरिंग में जैसे आपको पहले डिसाइड करना है कि एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होना चाहिए। ऑब्वियसली एमसीक्यू कर रहे हैं तो उसका हम 1 देते हैं। तो ऐसे करके 50 क्वेश्चनर बनाते हैं तो 50 मार्क्स का होगा। देन आप जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, आप ट्राई आउट के लिए जाएंगे, पायलट स्टडी के लिए जाएंगे। वो जब सपोज मैं एक क्वेश्चन बनाई हूँ 50 क्वेश्चन का, मैं क्लास 6 में जा रही हूँ, क्लास 6 में अगर 40 बच्चे हैं, मैंने वो टूल्स 40 बच्चे को दिया, 40 बच्चे ने आंसर किया, आंसर करके हमने कलेक्ट किया उस डाटा को, फिर हमने उसका स्कोरिंग किया। स्कोरिंग करके हम देखेंगे उसको, जो कौन सा बच्चा का कितना रैंक है, कितना नंबर है, कितना क्या है। तो आपको अभी अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्डाइज करना है, तो इसके लिए आपको 3 चीज निकालना पड़ेगा। वो है आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन, और आपको है कि वो जो आइटम कार्ड मीन्स आपका डिस्ट्रैक्टर सही है कि नहीं है। क्योंकि जब आप एमसीक्यू बनाते हैं, आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली एमसीक्यू आते हैं,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप जो डिस्ट्रैक्टर दे रहे हैं वो डिस्ट्रैक्टर ठीक है कि नहीं है, उसके लिए हम एक डिस्ट्रैक्टर कार्ड भी बनाते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। सो फर्स्ट इज द प्लानिंग द टेस्ट। आपको क्वेश्चनर अब बनाना है, आपको स्टार्ट करना है, तो आपको प्लानिंग क्या करना है? आपको जैसे मैंने बताया कि आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करना है, then the first work is the objective. Objective, all of you know that 3 domains of education: cognitive, affective, psychomotor. Cognitive is related to the brain, mind; affective is related to your heart; and psychomotor is related to your hand, motor activity. आपको सभी पता है, Bloom's taxonomy, all of you know about it. तो हम जनरली जब टेस्ट देखते हैं तो कॉग्निटिव पे भी देते हैं, अफेक्टिव पे भी देते हैं, साइकोमोटर भी देते हैं। ये डिपेंड करता है टीचर पे कि वो क्या टेस्ट करना चाहता है, और रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो क्या टेस्ट लेना चाहता है। यू आर फ्री टू टेस्ट कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, एनीथिंग। तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि 50 क्वेश्चन में हम कितना क्वेश्चन कॉग्निटिव से लेंगे, कितना अफेक्टिव से लेंगे, कितना साइकोमोटर से लेंगे। That is very important when you judge the question, when you test the question, when you prepare the question, you will go the objective wise. तभी आप एक स्टूडेंट का holistic development जो होता है, ऑल राउंड टेस्ट जो होता है, वो दे सकते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट काफी स्ट्रांग है, कॉग्निटिव काफी स्ट्रांग है, बट उसका अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है, तो वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता है। The teacher should test the all type of domain of a children. तो जब भी आप ऐसे लेवल में क्वेश्चन बनाए, तो यू हैव टू टेक केयर द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है आप एक ब्लूप्रिंट। आपने देखा होगा कि सुना होगा, बनाया भी होगा। ब्लूप्रिंट इज द टेस्ट स्पेसिफिकेशन कि किस क्वेश्चन को, किस चैप्टर में कितना क्वेश्चन कॉग्निटिव से रहेगा, इफेक्टिव से रहेगा, साइकोमोटर से रहेगा, और अप्रोप्रिएट टेस्ट आइटम आपको लेना है। कोई जैसे सेंटेंस में रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो कोई एम्बिगुअस आइटम नहीं होना चाहिए, ऐसा ना को आपने क्वेश्चन बनाया उसका आंसर 2-3 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिसाइड करना है। मैं एक आपको टेबल दिखा रही हूँ कि उसमें तो आपको इजी होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव, ये टेबल आप देख सकते हैं। आपने देखा, यहाँ पे देखा है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ऑल ऑफ यू नो अबाउट कॉग्निटिव डोमेन कि जैसे उसका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसका मैं बता रही हूँ। तो सपोज हमने अभी बहुत ही कम दिया है, 2 लेवल पे ही, जस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट। सपोज हमको एक स्टूडेंट का, एक क्लास का, ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इस पे हमें क्वेश्चन बनाना है, ये 3 ऑब्जेक्टिव लेके, और हमें 100 क्वेश्चन बनाना है। तो आप कितना परसेंटेज किसको देंगे, ये भी एक मतलब एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, आपको उतना देना है उस हिसाब से। तो हमने जैसे नॉलेज में 20% दिया, अंडरस्टैंडिंग में 40 दिया, एप्लीकेशन में 40% दिया। आपने देखा होगा जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, बहुत ही कम नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड मीन्स डायरेक्ट आंसर, जो फैक्ट होता है, जो लाइक नंबर्स होते हैं, जो टू द पॉइंट होता है, वैसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और रिसर्च क्वेश्चनर में भी आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन दे आर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेशन। सो व्हेन यू प्रिपेयर 100 क्वेश्चन, आप उसमें ऐसे डिवाइड कर सकते, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 20% ही लेना है। दिस इज जस्ट फॉर लाइक फॉर अंडरस्टैंडिंग कि 20% नॉलेज का दिया है, अंडरस्टैंडिंग का 40, एप्लीकेशन का 40। एज पर परसेंटेज हमने 100 क्वेश्चन बनाया है, तो 20, 40, 40 करके ये पहले आप ले लेंगे। जब आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया आपने, उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट मींस किस चैप्टर का कितना क्वेश्चन आप देंगे, क्योंकि टीचर में टेस्ट जब हम बनाते हैं तो हम रैंडमली किसी चैप्टर से क्वेश्चन लेके हम स्टूडेंट को देते हैं, लेकिन जब आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट करेंगे तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। इसीलिए आप जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, चाहे जैसे इंडिया में सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, जितने भी स्टेट है उसके बोर्ड है, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे 10th में बोर्ड होता है, 12th में बोर्ड होता है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, वो रैंडमली टीचर नहीं दे सकते। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो पायलट स्टडी से बना के फिर अच्छा वाला टेस्ट दिया जाता है, ताकि कोई क्वेश्चन नहीं उस पे कर सके कि ये क्वेश्चन गलत आया है, ये आंसर नहीं होना चाहिए। उसके जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं, दैट इज आल्सो लाइक इवैल्यूएटेड बाय द एक्सपर्ट।
तो उसके बाद आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट में आपको, जैसे मैं एक ब्लूप्रिंट का आपको दिखाती हूँ, व्हेन यू सी द टेबल दैट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू। तो आपको ब्लूप्रिंट बनाने से पहले आपको, सबसे पहले मैंने बोला कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ऑब्जेक्टिव कौन सा देंगे। इसमें आप अफेक्टिव डोमेन भी दे सकते हैं, जैसे एटीट्यूड दे सकते हैं, साइकोमोटर डोमेन दे सकते हैं, स्किल दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव देंगे। देन यू प्रिपेयर द वेटेज, आपको किस चैप्टर में कितना वेटेज देना है। अगर आप समेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको सभी चैप्टर को कवर करना है। अगर उसमें 5 चैप्टर है और 10 चैप्टर है, सभी चैप्टर को आपको कवर करना है। तो किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन लेना है, ये आपको एक पर्टिकुलर ऐसे एक टेबल बना के रफली आपको डिसाइड करना है। वेटेज गिवन टू डिफरेंट कंटेंट एरियाज। देन आपको क्या करना है, ये ब्लूप्रिंट, इसको ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हैं या फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसको, जैसे इसमें है कि किस चैप्टर में आपने जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में आप कितना देंगे, कि शॉर्ट आंसर देंगे या फिर मल्टीपल चॉइस देंगे या फिर सप्लाई टाइप देंगे, ऐसे करके इसका मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एरिया, सप्लाई टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप, मैचिंग टाइप, ट्रू फॉल्स। आप जानते हैं कि एमसीक्यू में जो होता है ये सारे एमसीक्यू के है टाइप, और आप कोई भी कर सकते हैं। आपको अगर सप्लाई टाइप में ही 100 बनाना है बना सकते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस ही बनाना है, मैचिंग में बनाना है, ट्रू फॉल्स बनाना है, ये मैंने जस्ट आइडिया के लिए दिया। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये करके आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना लेना है। ये बना लेने से क्या होता है कि यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आपका किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बनाना है। अगर आप इस यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप क्वेश्चन बना लीजिए। यू कैन प्रिपेयर द 50 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल प्रिपेयर। सो व्हाट हैपेंड, जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, because you are, after preparing the question, you are giving the questionnaire to someone for give the answer, or you can do the scoring. So you should be very clear about the administration of the test, for whom you are preparing the question, what is the level of the researcher, means students, your sample. So you have to very clear about the scoring, what should be the scoring, whether you are giving the marks or whether you are giving the Likert type scale, or whether you are giving the yes no. So you should be very take care of that. So आपका administration, जब आपका scoring करेंगे, question बन जाएगा, then you go for the test. But when you prepare the test, you have to take care 2 or 3 things. That list is long, but in short I am like मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाहती हूँ, ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे you should take care of few things. जैसे आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग आउटकम, आप क्यों क्वेश्चन बना रहे हैं, आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो क्यों रिसर्च करने जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आप क्या जज करना चाहते हैं, आप क्या उसका क्या अचीवमेंट, किस चीज में अचीवमेंट आप उसका देखना चाहते हैं, उसका आप स्कोलास्टिक अचीवमेंट देखना चाहते हैं या नॉन स्कोलास्टिक देखना चाहते हैं या फिर कोई और एरिया देखना चाहते हैं। इफ यू आर क्लियर इन दिस एरिया तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत इजी होगा। उसके बाद आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव देना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए कोई भी आइटम में, जैसे कोई डिफिकल्टी लेवल, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कोई आंसर ही नहीं दे पाए। यू शुड बी टेक केयर ऑफ द मॉडरेट होना चाहिए, उतना इजी भी नहीं होना चाहिए कि सभी कोई आंसर दे दे, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम वो आइटम डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन पावर निकालते हैं। उसके बाद टेक्निकल एरर नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन में, इररिलेवेंट कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम द रेशियल, इथनिक एंड सेक्सुअल बायसनेस। ऐसा क्वेश्चन आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। जब आपके पास क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा तो यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन बना के दे रहे हैं किसी को रिसर्च में या सैंपल में, तो कैसे उसको आंसर देगा। तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि इसका आंसर कैसा होना चाहिए। अगर आपका इंस्ट्रक्शन क्लियर होगा तो आपके सैंपल के लिए, आपके रिसर्च में ये बहुत इजी हो जाएगा और वो आपका जो डाटा होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, और देन फर्दर रिसर्च इज इजी फॉर यू। सो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पर्पस ऑफ द टेस्टिंग। आपको टाइम
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन दे दिया और आपने उसको बोला कि देख। तो आप यू शुड बी वेरी टेक केयर ऑफ द टाइम। और फिर रिकॉर्डिंग होना चाहिए आपका कि वो क्या आंसर क्या होगा उसका, ये आप उसको बताएंगे पहले ही। देन ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए कि गेसिंग इजी हो। फिर स्कोरिंग की आपके पास होना चाहिए कि जब आपके पास डाटा आए तो आप स्कोर कर सके। देन यू गो फॉर द ट्राई आउट। आप उसके बाद आपके पास क्वेश्चन बन चुका है, देन आप ट्राई आउट के लिए जाएंगे। जिसके लिए बनाए हैं आप वहां पे ट्राई आउट कीजिए, उसको दीजिए एडमिनिस्टर करके, फिर स्कोरिंग करके आपके पास क्वेश्चन आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको यू हैव टू वेरी टेक केयर दैट कि आप सपोज आप स्टूडेंट को क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट, क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, दैट स्टूडेंट इज रेडी टू गिव योर आंसर और नॉट, दैट स्टूडेंट शुड बी क्लियर और नॉट। उसको पूरा पता होना चाहिए कि आप एक रिसर्चर हैं, आप डाटा कलेक्शन के लिए आए हैं, इसका आंसर कैसे देना है, इसमें वो उसको आपको पूरा समझाना होगा कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मुझे ये डाटा चाहिए, इसका ये पर्पस है, और आपका जो है वो सेक्रेसी मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि बहुत लोग आप चाहते हैं कि हमारा नहीं जाए डाटा, बहुत स्कूल्स कॉलेज भी चाहते हैं कि बाहर नहीं जाए, तो आप बोल सकते हैं कि आपका ये रिसर्च पर्पस के लिए हम केवल कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप का कुछ इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टडी और द प्लेस वेयर यू आर डूइंग स्टडी। कौन सा स्टडी आप कर रहे हैं, सपोज आप कुछ जैसे मैरिज सिस्टम पे कर रहे हैं, कुछ डिवोर्स पे कर रहे हैं, या फिर कुछ सोशल सिस्टम पे कर रहे हैं, या कुछ केस स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे अगर कुछ आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको सेक्रेसी मेंटेन करना पड़ा। दैट शुड बी वेरी क्लियरली यू डू बिफोर द स्टार्टिंग द क्वेश्चन। ये एडमिनिस्ट्रेशन में आपको टेक केयर करना है। देन स्कोरिंग जब आपके पास आ जाएगा तो आपका स्कोरिंग की पहले से रेडी है, आप उसको स्कोरिंग मीन्स आपको उसको नंबर अगर है तो नंबर दे देंगे तो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको गेसिंग वाला क्वेश्चन को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर गेसिंग वाला क्वेश्चन ज्यादा रहेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी उसको फिर क्योंकि एम्बिग्विटी रहेगा आंसर में। सपोज 2 डिस्ट्रैक्टर है तो दोनों डिस्ट्रैक्टर एक जैसा लगेगा तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप बोलेंगे कि नहीं सी इज द राइट आंसर, तो वहां पे क्वेश्चन आ सकता है नो डी इज ऑल्सो राइट आंसर। तो यू शुड बी वेरी टेक केयर वाइड आपको जब क्वेश्चन का डिस्ट्रैक्टर देते हैं। Then last part is the evaluation, the test that is very important. यह evaluation में आपको 4 चीज का ध्यान रखना है। First is the item analysis, then you have to take care the validity, then reliability, then eligibility. So first we see the item analysis. What is item analysis? Suppose you prepare the 100 question. 100 question means you have the 100 item. Item here is the question. So suppose you prepare the 100 question, you have the 100 item. तो उस 100 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस अगर आप बना रहे हैं तो 4 आंसर होंगे ए बी सी डी, जिसको हम डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो वो आइटम ठीक है कि नहीं है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। सो हाउ यू टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द आइटम मींस क्वेश्चन और द डिस्ट्रैक्टर ठीक है कि नहीं है, उसके लिए हम आइटम एनालिसिस करते हैं। इसमें आपको जो फर्स्ट काम है वो आपको काम है कि आप सपोज आपने क्वेश्चन बनाया 100, तो आपको ऊपर से 27% लेना है और लोअर ग्रुप से 27% लेना है। तो यू कैन अरेंज, जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने लिखा है स्लाइड में, सेलेक्ट 27% टेस्ट पेपर फ्रॉम हाईएस्ट। आपके पास सपोज आपने 60 स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन आपने बनाया, एक क्लासरूम में गया, आपके पास 60 सैंपल है, ओके 60 सैंपल है, 60 स्टूडेंट को आपने क्वेश्चन दिया, आपने कलेक्ट किया, आपने स्कोरिंग किया। अब आपको देखना है कि हमने जो 100 क्वेश्चन बनाया था वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, because you are doing the pilot study, you are not doing the exact research, you are doing the pilot study. अगर उसके बाद आपका जो क्वेश्चनर होगा then you go for the original research and that is used by the everyone. So आपको क्या करना है, 60 स्टूडेंट को आपने दिया, उसके बाद आपने कलेक्ट किया, तो आपके पास कितने आंसर सीट होंगे, 60 स्टूडेंट को हमने दिया, आंसर सीट 60 होंगे। 60 में से आपको 27% अपर लेवल में, 27% लोअर लेवल से आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो सपोज आपके पास 27% आपने ऊपर से लिया तो कितना हुआ, 16,
ओके 16 टेस्ट पेपर और फिर लोअर लेवल से दिया 16, तो आपके पास अभी 32 है. इज इट क्लियर फॉर यू? यू हैव गिवन टेस्ट टू द 60 स्टूडेंट, यू कैन कनेक्ट द 60 स्टूडेंट, लेकिन आप आइटम एनालिसिस के लिए जब जा रहे हैं तो आपको 27% अपर लेवल से करना है, आपको अरेंज कर लेना है उसको, ठीक है, अरेंज कर देना है स्कोरिंग वाइज, लाइक हाईएस्ट टू लोएस्ट. सपोज आपने 100 क्वेश्चन बनाया, 100 मार्क्स का बनाया, किसी को 98 आया, किसी को 42 आया, किसी को 27 आया, तो आप हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर उसको अरेंज कर लेंगे. 98, 74, 69, 54 ऐसे करके हाईएस्ट से लोएस्ट आप उसको अरेंज कर लेंगे. फिर 27% अपर लेवल से 27% लोअर लेवल से सेलेक्ट करेंगे. 27% जब हम करेंगे 60 स्टूडेंट का तो 16 होगा 16, तो 16 स्टूडेंट आपका अपर हो गया, 16 स्टूडेंट लोअर हो गया. मींस आपके पास अभी 32 क्वेश्चन पेपर है. इज इट क्लियर? 32 क्वेश्चन पेपर है. तो 32 में आप क्या करेंगे, आप आइटम डिफिकल्टी के लिए जाएंगे. आइटम डिफिकल्टी का फॉर्मूला है R/T. आप देख सकते हैं आइटम डिफिकल्टी का फॉर्मूला है R/T into 100. तो R यहाँ पे क्या है, R है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट द आइटम करेक्ट. ठीक है, अब आपको 32 ही आंसर सीट है, उसी में देखना है. 32 आंसर सीट में आपको सभी में 100 आइटम है. 32 आपके पास सेट है, 32 में 100 है. आप आइटम 1, सपोज एग्जांपल हम आइटम 1 देख रहे हैं कि आइटम 1 एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, तो आप उसका डिफिकल्टी, आइटम डिफिकल्टी उसका निकाल रहे हैं आइटम 1 का. तो आइटम 1 में आप देखेंगे कि आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट द आइटम करेक्ट. कितने स्टूडेंट ने आउट ऑफ 32 कितने स्टूडेंट ने उसको करेक्ट किया है. एंड टी इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्राइड द आइटम. ठीक है, 32 स्टूडेंट्स में कितने ने उसको ट्राई किया, और वो टी है, और आर है कितने ने उसको करेक्ट किया. जैसे यहाँ पे हमने दिया है कि 32 स्टूडेंट में उसमें 20 स्टूडेंट जो है वो करेक्ट किया आंसर. ओके, और 30 स्टूडेंट्स ने ट्राई किया. मीन्स हमारा टोटल स्टूडेंट है 32 में 30 स्टूडेंट्स ने आइटम 1 क्वेश्चन को ट्राई किया, 2 स्टूडेंट ने छोड़ दिया, उसको टच ही नहीं किया. 30 ने ट्राई किया, बट ओनली 20 स्टूडेंट ने उसको करेक्ट किया. तो हम आइटम डिफिकल्टी क्या होगा, R/T into 100, 20/30 into 100, तो 66.67%. ओके, 66.67% आया आइटम डिफिकल्टी. क्यों हम आइटम डिफिकल्टी निकालते हैं, क्या है ये आइटम डिफिकल्टी? तो आइटम डिफिकल्टी का एक जो कस्टम थे इसको, कि अगर आपका आइटम डिफिकल्टी 25% से 75% तक आता है तो आपका वो क्वेश्चन ठीक है, यू कैन गो विथ दैट क्वेश्चन. ओके, बट इफ योर आइटम डिफिकल्टी इज मोर देन 75%, अगर आपका आ रहा है 75% से ज्यादा आ रहा है तो वो आइटम क्या है, बहुत ही इजी है. और अगर 25% से कम आ रहा है तो वो आइटम बहुत ही डिफिकल्ट है. तो आपको जैसे हमारा यहाँ पे आया है 66.67, तो ये क्वेश्चन हम दे सकते हैं. जिस क्वेश्चन का आइटम डिफिकल्टी लेस देन 25 आ रहा है, जिस क्वेश्चन का आइटम डिफिकल्टी 75% से ज्यादा आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए. वो क्वेश्चन आपके रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है. जो क्वेश्चन 25 से 75% तक आइटम डिफिकल्टी आ रहा है उसी को रखना है. क्लियर व्हाई वी आर यूजिंग द आइटम डिफिकल्टी. Then second you go for the item discriminating power. Item discriminating power ये है कि आपको बताता है कि आप कैसे एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेंगे हायर डिफिकल्टी लेवल पे. तो उसका फॉर्मूला है RU minus RN by T/2. इसका अगर आप RU है स्टूडेंट्स फ्रॉम अपर ग्रुप who got the answer correct. Okay, अपर ग्रुप आपको पता है कि हमने 16 दिया है 32 स्टूडेंट में, और 16 है लोअर ग्रुप. तो RU वो 16 में कितने स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को सही किया, और RN है कि लोअर ग्रुप मींस आउट ऑफ 16 कितने स्टूडेंट ने उसको सही किया. T/2 है, T/2 है हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इंक्लूडेड इन द आइटम एनालिसिस. तो इन आइटम एनालिसिस में हमने कितने स्टूडेंट को इंक्लूड किया है, 32.
तो ये आपका 32 का हाफ क्या होगा, 16 होगा। तो सपोज एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 15 स्टूडेंट फ्रॉम अपर ग्रुप, सोडा सोडा ऊपर है, सोडा नीचे है, तो सोडा में 15 स्टूडेंट जो है वो आइटम को करेक्ट किया है और नीचे 5 स्टूडेंट ने करेक्ट किया है। तो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हाउ यू कैलकुलेट, RN by T by 2। तो 15 अपर ग्रुप से करेक्ट किया आउट ऑफ 16 में, लोअर ग्रुप से 5 ने करेक्ट किया आउट ऑफ 16 में, और T by 2 मीन्स 32 by 2 16। तो आपका डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हो गया 0.63। ओके क्लियर, 0.63। ओके, सो इफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर इज 0.63 मीन्स पॉजिटिव है, ये निगेटिव भी आ सकता है, कभी निगेटिव भी आ सकता है, कभी 0 भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर ये निगेटिव आया तो आपको वो क्वेश्चन को छोड़ देना है। अगर ये पॉजिटिव आया मीन्स एवरेज डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, यू कैन टेक दिस क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अगर 0 आया तो उसका नो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, उसको भी आपको छोड़ देना है। जिसका निगेटिव आएगा उसको भी छोड़ देना है, जो 0 आएगा उसका भी छोड़ देना है, और जिसका 1 आएगा उसका भी छोड़ देना है, क्योंकि उसका बहुत ही पॉजिटिविटी मैक्सिमम है, तो वो क्वेश्चन को भी आपको छोड़ देना है। सब अगर निगेटिव आया, अगर 0 आया, 1 आया, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, आपको नहीं लेना है अपने रिसर्च के लिए, फाइनल क्वेश्चन के लिए। बट अगर 0 to 1 के बीच में आता है, पॉजिटिव पूरा 1 नहीं आता है, 0.6, 0.5, 0.4, 0.7, तो आप उस क्वेश्चन को ले सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, मीन्स ये बताता है कि हायर डिफिकल्टी, और item should not be so easy, item should not be so difficult. Then the find out the effectiveness of distractor। अगर आप MCQ बनाते हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्टर आप देते हैं ABCD, कभी 4 या कभी 5 बनाते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो डिस्ट्रैक्टर सही है कि गलत है। तो वो डिस्ट्रैक्टर में क्या है कि लोअर ग्रुप से ज्यादा आंसर आना चाहिए। अगर सपोज एक क्वेश्चन है उसका अगर 4 आंसर है, तो जो लोअर ग्रुप आपने जो सिलेक्ट किया है 60, उससे ज्यादा आंसर उसको करना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि वो आइटम ठीक है। जैसे ये आइटम कार्ड, ये आइटम एनालिसिस कार्ड बनाते हैं सभी क्वेश्चन का, तो आपको आप देख सकते हैं इसमें कि ग्रुप पे अपर ग्रुप है, लोअर ग्रुप है। अपर ग्रुप में हमने 16 स्टूडेंट दिया था, 27%, लोअर ग्रुप में हमने 16 दिया था। ओके, दैट इज वेरी क्लियर। तो अल्टरनेटिव है यहाँ पे ABCD है, 5 चॉइस है, 5 चॉइस है। तो इसका आंसर, सपोज इसका क्वेश्चन 1 का आंसर है C, तो C जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर को अपर ग्रुप ने 16 में 15 ने सही किया, बट लोअर ग्रुप जो 16 है उसमें 5 ही ने सही किया, ठीक है। और सब वो ABCDE में सब में चॉइस दिया था। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स रिस्पॉन्डेड, अपर ग्रुप से 16 ने ही रिस्पॉन्स किया, लोअर ग्रुप से 14 ने ही रिस्पॉन्स किया। तो यहाँ पे 67, और आइटम डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हमने कैलकुलेट किया था 0.63। तो अगर ये लोअर ग्रुप से ज्यादा आंसर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप सपोज आपने 100 क्वेश्चन बनाया, 50 बनाया, 70 बनाया, जितने भी आप क्वेश्चन बनाए उसमें आप कौन सा क्वेश्चन अप्रोप्रिएट है, कौन सा क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके लिए आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेटिंग पावर निकालने से भी हो जाएगा। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन भी देखना है कि कौन सा डिस्ट्रैक्टर सही है नहीं है, तो आप आइटम एनालिसिस कार्ड दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको, जैसे आपने 70 क्वेश्चन बनाया या 100 क्वेश्चन बनाया, तो हो सकता है कि आफ्टर आइटम डिफिकल्टी आइटम डिस्क्रिमिनेटिंग पावर करके आपका क्वेश्चन 20 ही बचे, या फिर 40 ही बचे, या फिर 50 ही बचे। तो जो बचेगा उसके बाद वही आपका एक्यूरेट क्वेश्चन होगा, एंड दैट क्वेश्चन यू विल यूज फॉर द योर रिसर्च पर्पस। अब जो भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप खुद ही क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे मैंने अपने PhD में किया था, एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस मेरा टॉपिक था, मैंने उसमें क्वेश्चन बनाया था, हमने 180 क्वेश्चन बनाया था उसपे। मेरा सेकेंडरी लेवल पे था, मीन्स सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 9, 10, 11, 12 4 क्लास को मैंने लिया था।
तो हमने 120 और ज्यादा भी बनाया होगा, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत साल हो गए, तो ज्यादा बनाया था, लेकिन हमने फाइनली उसमें 75 ही रखा क्वेश्चन। जो हमारा ओरिजिनल टूल्स, यू कैन लाइक चेक इन इंटरनेट ऑल्सो, तो उसका जो फाइनल जो क्वेश्चनियर है वो 75 ही है। हमने बहुत ज्यादा बनाया था, लेकिन आफ्टर आइटम एनालिसिस वी फाइंड दैट only 75 items are accurate for the research purpose। तो आप अगर ट्रूथ डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आप क्वेश्चन बनाइए, वो क्वेश्चन कोई भी टॉपिक पे हो सकता है। तो आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो रैंडमली बनाते हैं, आप कभी अपने से सोच के या कभी किसी रेफरेंस से या कभी कहीं किसी से देख के आप रैंडमली बनाते हैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, लेकिन आप उसको ऐसे रिसर्च के लिए आप यूज नहीं कर सकते विदाउट स्टैंडर्डाइज करके। तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यू कैन गो फॉर द आइटम एनालिसिस, और आइटम एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ 200 आपका क्वेश्चन 30 बचा या 40 बचा, इतना ही अप्रोप्रिएट है रिसर्च के लिए। तो यू कैन ऑल्सो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपने देखा होगा कि क्वेश्चन 30 40 50 जनरली यही रहते हैं टूल्स में। तो यू कैन डू इट फाइनल एंड गो फॉर द फाइनल रिसर्च। बिफोर दैट आपको वैलिडिटी एक बार कैलकुलेट करना है अपने क्वेश्चनर का, एक बार रिलायबिलिटी भी कैलकुलेट करना है और उसका यूजेबिलिटी भी कैलकुलेट करना है। रिलायबिलिटी आप बहुत सारे मेथड हैं, आप उससे, वैलिडिटी भी आपको पता है कि बहुत सारे कंटेंट वैलिडिटी है, फेस वैलिडिटी है, कंकरेंट वैलिडिटी है। आप कोई भी वैलिडिटी सेलेक्ट करके आप उसको कर सकते हैं। सपोज मैंने टूल डेवलप किया है एटीट्यूड टुवर्ड साइंस, आपको भी उसी पे अगर डेवलप करना है तो आप मेरा टूल देख के आप उससे कर सकते हैं। फिर रिलायबिलिटी भी बहुत सारे मेथड है, आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। मैं आज रिलायबिलिटी के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर एक साथ सब करूंगी तो आपको फिर समझने में प्रॉब्लम होगा। तो मैं इरफान सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर अभी कभी कोई सेशन मिलेगा तो मैं रिलायबिलिटी को डिटेल में, बिकॉज फॉर रिलायबिलिटी यू नीड वन मोर क्लास। और आप वैसे आपको पता ही होगा कि आप किसी भी मेथड से रिलायबिलिटी आप निकाल सकते हैं, और रिलायबिलिटी मोर देन 0.7 होना चाहिए, 0.7 0.8 अगर है तो रिलायबल है क्वेश्चन। और यूजेबिलिटी हुआ कि आप वो टूल जो बना रहे हैं वो यूजेबल होना चाहिए, आप जिसके पर्पस के लिए बना रहे हैं वो काम में होना चाहिए। तो आज मैं ज्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि ज्यादा देने से समझ में नहीं आएगा। होप इट विल बी क्लियर फॉर एवरीवन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो you can ask. Thank you, Dr. Savita Mishra, for your kind workshop Yeah, and thank the you. way which you have delivered and gave a touch to practicality. We are so inspired and thankful, grateful from your kind workshop to deliver here to our physical participants. Along with this, we have few virtual participants as well. Thank you once again. For participant, if you have any questions, you can do it. Here we have physical participant as well. Along with this, we have some online participant. If you have any question, you can do it from Dr. Savita Mishra is here. May I ask a question, sir? Yeah, sure. sure. Anyone can ask the question. Sure. Okay. Thank you so much for the great presentation. Actually, I Thank want you. to know about the validity of the questionnaire. Which type of method mostly we are using for the validity? Because the other things, the usability and reliability is something not that much difficult. But the validity is very important, especially in the field of medical sciences. Which type of methods mostly we have to use, ma'am? Is it depend on the type of research that we are doing, or someone else? Or anything else? Thank you. No. Generally, yes, thank you for question. Generally, when you prepare the question, you go for the content validity. That is the most appropriate to go for the content validity. Or simultaneously, you can check the face validity also, or sometimes concurrent validity also. It depends upon the research also, but I prefer to go for the content validity. That is easy also, and that is more valid also. Okay, ma'am. Thank you so much. And could you please just tell the steps for content validity very shortly? Thank you. Yeah. Content validity. Suppose you have developed a you after odd item analysis, you kept for the 50 question. Okay. So you
you are not first that preparing the tool on that topic. So you can see the previous researcher like tools that what they have prepared on that, and you see their validity and your validity, and you can take the like their content and your content, so you can calculate the content validity. There are some like detailed description also, if you need, I will share with you, or you can go the face validity also. So but the content validity is more easy to calculate. Okay, You ma'am, see the thank you. content of your Sometimes, question. It depends upon the okay, content. Yes. sometimes when we want to prepare a questionnaire, there is no sample available in internet, and we are the first who are preparing the questionnaire. So in this case, we have to go for validity. Yeah, in that also you can calculate the content validity on the based of your questions, your content. Okay. Okay, ma'am, thank you so much. By using the your content, because you have prepared your content, so on that basis you can calculate the content validity. Okay, ma'am, thank you. Yeah, thank you. From Any more participant, if you questions? have any questions, you can do it. Dr. Savita Mishra is here with us. If you have any questions. Thank you, doctor. Thank you, doctor, for your kind workshop and the way you have delivered. At the end, we have a participant certificate for a participant. We join online, and a physical we have joined us. We have also a certificate for them. For Dr. Savita Mishra, we have a speaker certificate, and we will send you when we have officially approved here. It's a special certificate we will give for a speakers. For a participant, we are requiring a certificate. Our coordinator share the WhatsApp link. You may join the WhatsApp, and the WhatsApp we will share in a few minutes. Google form. After that, you will complete the Google form. Then you will receive your participation certificate. For Dr. Savita Mishra, we have a speaker certificate, and then we will send you. Thank you, Dr. Savita Mishra, for your kind workshop which you have delivered to our both Thank you, participants, doctor. Thank which you so exist much. physical and virtual. Thank you, doctor. Yeah, Thank thank you, doctor. If I get chance, then I would be happy to like go for the readability in detail. So if you see if anyone will discuss about readability, then it's okay. Otherwise, if you give me chance, I will be very happy to discuss about readability with the participants if they need, and if they need more like clarification, they can like ask me through you. You can share my phone number and mail ID. Okay, thank you, doctor. Yeah, thank you, all dear participants. Thank you. Thank you, Yes. doctor. Thank you. Thank you. May I Okay, leave, doctor? thank you. May I leave? Yeah, thank you. Thank you. Sure, doctor. Sure. Yes. Have a great day. Bye for now. Thank you. Dear participant, our coordinator share the WhatsApp link here. We will share soon the e-certificate link. Thank you. Thank you once again for your kind joining. Thank you. Have a great day. Bye for now.